یہ ویڈیو بہت ہی خاص ہونے والی ہے کیونکہ اب تک آپ نے جو ویڈیوز دیکھی ہوں گی اس میں پاکستان، انڈیا اور یورپ کی بہت سی شادیوں کی رسومات دیکھی ہوں گی، پر اس افریقہ کے ملک کی جو شادی کی رسومات ہیں یقیناً آپ کو چونکا دیں گی، اور یقین کریں آپ یہ دیکھ کر بھی حیران ہو جائیں گے کہ یہ کیسی رسم ہے، ہم نے تو نہ سنا نہ کبھی دیکھا۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ ہم شادی کی رسومات سے پہلے موریتانیہ کے بارے میں آپ کو کچھ ایسی معلومات بھی دیں گے جو یوٹیوب پر کسی اور ویڈیوز میں نہیں ہوں گی، کیونکہ آپ تو دیکھتے ہیں ٹریول ولاگز کسی بھی ملک کی انفارمیشن جاننے کے لیے، جن کا کنٹینٹ صرف ویکیپیڈیا یا کسی اور سائٹ سے لیا جاتا ہے، پر ان کے اندر وہ ریسرچ نہیں ہوتی جن سے آپ کو حقائق جاننے کا موقع ملے۔ اس کے لیے میں نے بہت ریسرچ کی ہے اور پھر مستند مواد ڈھونڈا ہے، اس کے بعد یہ جو ویڈیو کا حصہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ بنایا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ آپ اس خاص حصے کو بھی مس نہیں کریں گے۔ ویسے تو پوری ویڈیو ہی اپنی نوعیت کی ایک الگ ویڈیو ہے۔ ڈاکٹر سجاد خاکوانی صاحب ایک مضمون افریقہ کا مغربی اسلامی ملک موریتانیہ میں لکھتے ہیں، اور یاد رہے کہ یہ چترال ٹائمز.com کی ویب سائٹ ہے جہاں پر یہ مضمون 22 نومبر 2022 کو شائع ہوا۔ وہ اس ملک کی تفصیل کچھ اس طرح بتاتے ہیں کہ اس ملک کی آبادی مختلف قبائلی گروپس میں بٹی ہوئی ہے۔ ایک اندازے کے مطابق یہ ملک کل 2.5 ملین لوگوں کا گھر ہے، جس میں کالی رنگت کے حامل افراد اکثریت میں ہیں، جبکہ عرب قبائل کے لوگ اقلیت میں ہیں، اور آبادی کا ایک غالب حصہ ملے جلے لوگوں پر بھی مشتمل ہے۔ موریتانیہ میں مجموعی طور پر کوئی شخصی انفرادی جائیداد کا مالک نہیں ہو سکتا۔ وہاں کی زمینیں، جائیدادیں اور رقبے کسی خاص خاندان کی ملکیت ہوتے ہیں۔ جائیدادوں اور زمینوں کے مالک دیگر خاندانوں سے فصل کی شرعی تقسیم پر کاشتکاری کرواتے ہیں۔ یہ خاندانوں کی تقسیم اس معاشرے پر بھی اثر انداز نظر آتی ہے۔ 100% مقامی آبادی مسلمان ہے۔ ان کے جھنڈے کی سبز رنگت کا حامل اور چاند ستارے پر مشتمل ہونا اسے ثابت کرتا ہے۔ یہاں کے لوگ ایک پیالے اور ایک ہی بڑے سے برتن، یا آپ اسے پرات کہہ سکتے ہیں، ان میں کھانا کھاتے ہیں۔ اب ان ڈاکٹر صاحب کے آرٹیکل کو یہیں ہم روکتے ہیں اور ہم اس پر بات کرتے ہیں کہ یہ سن کر مجھے یہ لگتا ہے کہ جیسے ہمارے ملک پاکستان میں زیادہ تر قبائلی لوگ ایک ہی پرات میں سب مل کر کھانا کھاتے ہیں، ان کا اور ہمارا کوئی نہ کوئی بہت ہی گہرا تہذیبی تعلق نظر آتا ہے۔ جس طرح ان کا ہم سے کھانا پینا ملتا ہے، جیسے ان کی عورتیں پردے کا ایک نظام رکھتی ہیں جس میں یہ اپنے جسم کو ایک چادر سے ڈھانپتی ہیں، جس میں سر اور بدن کو پوری طرح ڈھانپنے کا انتظام ہوتا ہے، اور یہی کچھ ہمارے ثقافت کا بھی حصہ ہے۔ تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ یہ یقیناً ہمارا ایک تعلق رہا ہوگا، شاید اس وقت ہو کہ جب ہم انڈس ویلی سیولائزیشن میں ہوا کرتے تھے، یا اس کے بعد کبھی بھی یہ سلسلہ ہمارا اور ان کے تہذیبی کبھی ملا ہوگا۔ اس کا کوئی تاریخی شواہد نہیں ملے، لیکن یہ میں اس ڈیٹا سے ازیوم کر رہا ہوں۔ چلیں ڈاکٹر صاحب کے اس آرٹیکل کی طرف ہم دوبارہ آتے ہیں۔ وہ مزید بتاتے ہیں، یہاں کھانے کے بعد دودھ ملا مشروب یا پھلوں کے رس بھی پلائے جاتے ہیں۔ خاص طور پر دوپہر اور رات کے کھانے کے بعد سبز چائے کا دور بھی چلایا جاتا ہے۔ کھانا کھلانے پر مامور شخص مجلس کا سب سے کم عمر فرد ہوتا ہے۔ گوشت، مچھلی، چاول اور آلو یہاں کثرت سے کھائے جانے والی خوراک ہے۔ صرف ناشتے میں دودھ اور ڈبل روٹی استعمال کی جاتی ہے۔
खाना खाने का रिवाज घरों तक महदूद है और रेस्टोरेंटों में खाना खाने का रिवाज बहुत ही ज्यादा कम है। ससुरालियों की मौजूदगी में खाना खाना मायूब समझा जाता है। फ्रांसीसी जबान वहाँ की तालीमी और अशराफिया के यहाँ कसरत से बोली जाने वाली जबानों में से एक है। दफ्तरी जबान के तौर पर मोरितानिया में अरबी जबान इस्तेमाल होती है। बाकी मुतअद्दिद कबाइल अपने अपने इलाकों में अपनी मकामी व आबाई व इलाकाई ज़बानें बोलते हैं। आला तालीमी व तरबियती इदारे सिर्फ दारुल हुकूमत में ही हैं, लेकिन नाकाफ़ी हैं और बेशतर तलबा को मायारी तालीम के लिए और यहाँ के हुनरमंदों को नौकरियों के लिए दूसरे मुल्कों का रुख करना पड़ता है। मुझे यकीन है अब तक की जो हमारी ये वीडियो है, यहाँ तक जहाँ तक हम पहुँच चुके हैं, आपको इस पर मज़ा आ रहा होगा और आप अब शिद्दत से इंतज़ार कर रहे होंगे कि शादी की उन रसूमात के बारे में जाना जाए। तो लीजिए, इंतज़ार ख़त्म, हम शुरू करते हैं। मोरितानिया के तारिक वतन की वापसी के साथ ही मोरितानिया में शादी का सीज़न शुरू हो जाता है। ख़ानदान कई दहाइयों से जारी रस्म व रिवाज के मुताबिक शादी की तकरीबात का एहतमाम करने के लिए रिश्तेदारों और दोस्तों को जमा करने के मौके से फ़ायदा उठाते हैं। पिछले 5 सालों के दौरान मोरितानिया में शादी की तकरीबात पर शे खर्ची, शोखी और असराफ एक दबाव का अंसर बन गया है। ख़ास तौर पर नौजवानों और मुतवस्सित तबके के ख़ानदानों पर ये बोझ गिरा गुजर रहा है। ये सुनकर आपको लगता नहीं ये पाकिस्तान ही की बात हो रही है? इसीलिए तो मैंने इस मुल्क की शादियों का किस्सा आपके सामने रखा है, क्योंकि ये मुल्क भी हमारी तरह एक इंतहाई गरीब मुल्क है, लेकिन लोग हमारी तरह ही शाखर्च हैं। मुल्क चाहे गरीब हो, लेकिन अवाम इन फरसूदा रस्म व रिवाज को पूरा करने के लिए अपनी जमा पूंजी बेजा लगा देते हैं। अभी तो हमने इब्तिदा की है, देखिए आगे भी आपको ये मोरितानिया पाकिस्तान ही की तरह लगेगा। जैसा कि शादी वाले खानदानों में अपनी मर्जी के मुताबिक एक बहुत बड़ी पार्टी का एहतमाम किया जाता है, जिसमें तमाम खानदानों, जानने वालों और कबायली हलकों को मोरूसी रस्म व रिवाज के मुताबिक शामिल किया जाता है, जिनमें से अक्सर पर बहुत ज़्यादा रकम खर्च होती है। मोरितानिया में शादी के रिवाज मुख्तलिफ हैं, जिनमें से कुछ कदीम ज़माने से विरासत में मिले हैं। ये बिल्कुल हमारी तरह ही हैं, जैसे हमने कुछ रिवाज हिंदू तहजीब से लिए हैं और कुछ हमने अरबों से लिए हैं। इसी तरह हम अब कुछ और रिवाज अपने मुआशरे में इंपोर्ट कर रहे हैं, जैसे हम बहुत सारी चीज़ें दुनिया से इंपोर्ट करते हैं। क्या ही अच्छा होता कि हम इन ममालिक से, ख़ास तौर पर इन मगरबी ममालिक से, सादगी का रिवाज ही इंपोर्ट कर लेते। अब इन फजूलियात की वजह से मोरितानिया के ख़ानदानों के बजट पर इजाफी दबाव पड़ रहा है। मोरितानिया की शादी के मराहिल। रिवायती शादी के मराहिल मुख्तलिफ होते हैं। शादी से कुछ दिन पहले एक सरकारी मंगनी से तकरीब शुरू होती है। ये शादी कई रिवायती तकरीबात पर मुश्तमिल है। दुल्हन की वालदा की तरफ से ख़वातीन के लिए मुनक़्क़िद की जाने वाली अल मुक़ील तकरीब इसकी इब्तदाई तकरीब समझी जाती है। इसके बाद दाखला या दखला की रस्म के साथ शादी आगे बढ़ती है। इसके बाद अल सबाहिया इसकी आखिरी तकरीब है। इसमें दूल्हा और दुल्हन को इनके हनीमून के सफ़र पर अलविदा करने की रस्में शामिल हैं। मोरितानिया में शादी की तकरीब की एक अजीब बात यह है कि नौ बेहाता जोड़ा शादी की तकरीब में शिरकत नहीं करता, क्योंकि तकरीब में दुल्हा के घर वालों की शिरकत
दो खानदानों, रिश्तेदारों और जानने वालों तक महदूद होती है। अब यहाँ भी तमाम खानदान और रिश्तेदारों की मौजूदगी में एक बड़ी ज़ियाफ़त मुनक्किद की जाती है, जिसमें दूल्हा अपने नायब के ज़रिए दुल्हन के ख़ानदान को कपड़े और ज़ेवरात पेश करता है। दोनों ख़ानदान तमाम अफराद से वाकफियत हासिल करने के लिए इस मौके से फ़ायदा उठाते हैं। शादी की तकरीब के दौरान जो आम तौर पर एक शादी हाल में मुनक्किद की जाती है, आम तौर पर एक दूसरे से मुल्हिका एक खैमा होता है, जो इस सारी तकरीब को एक आरामदेह और रिवायती शादी का माहौल फराहम करने के लिए सजाया जाता है। दुल्हन के अहले खाना मधु अफराद का इस्तकबाल करते हैं। इस मौके पर गैर रिवायती तौर पर मराकश के लजीज खानों, मिठाइयों और मशरूबात, जो मोरितानिया की शादी की एक अजनबी रिवायत है, मेहमानों में पेश किए जाते हैं। अब यहाँ फिर हम इसके ऊपर एक तज्जिया करते हैं कि अब यहाँ खानों के मामले में भी हम पाकिस्तानी और मोरितानिया के बासी कितने मुश्तरक हैं कि यहाँ भी अक्सर शादियों में अपनी इज्जत और वकार और अपनी बेजा नमूद और नुमाइश दिखाने के लिए बड़े बड़े इक़दामात खाने के लिए किए जाते हैं। जैसे यहाँ पर पाकिस्तान में चाइनीज़ और दीगर कॉन्टिनेंटल फूड्स की ख़ास तैयारी भी की जाती है, जो हमें किसी तौर भी गरीब मुल्क साबित नहीं करती और ना हमें कोई किफ़ायत शुआरी का सबक देती है। हमें इस पर सोचना होगा। अब मोरितानिया में भी हमारी तरह ही शादी हालों में नौ बिहाता जोड़े का इस्तकबाल करने के लिए मौसीकी पेश की जाती है। शादी ब्याह की खुशियों से मुतल्लिक पुरजोश अशार, आबाओ अजदाद और कबाइल की बहादुरी के अशार गाए जाते हैं। तकरीब का इख्तिताम मरकज़ी दावत के साथ होता है, जिसमें मज़ेदार रिवायती खानों की 3 डिशेस पेश की जाती हैं। अब इसको मज़ीद मैं आपके सामने ज़रा खोल के रखने लगा हूँ ताकि हमें कुछ वहाँ के लोगों के इंटरव्यूज़ मिले। इसके लिए मैंने बहुत सी रिसर्च की और उसके बाद मुझे उर्दू अल अरबिया की वेबसाइट पर शाया एक मज़मून मिला जिसमें काफ़ी डाटा था। ये मज़मून 25 जून 2024 को अपलोड हुआ। इसको सकीना इब्राहिम साहिबा ने यूँ तहरीर किया कि अजीज़ा महमूद, एक पार्टी ऑर्गेनाइज़र का कहना है कि मोरितानिया में शादी बहुत से कदीम अरब और अफ्रीकी रस्म व रिवाज की खसूसियत रखती है। उन्होंने अल अरबिया.net के साथ अपने इंटरव्यू में मज़ीद कहा कि ख़ानदान शादी को बरकरार रखने के ख्वाहां हैं। वो यकसा सकाफ़त और रिवायात और शादी का जश्न मनाते हुए माजी की यादों को ताज़ा करते हैं और इस तरह ये लोग मोरितानिया की सकाफत को उजागर करते हैं। शादियों के अखराजात और कुछ ख़ानदानों की तरफ से कर्ज अदा करने या शादी की खुशी को मुकम्मल करने के लिए ख़ानदानों के अंदर इमदाद के दरवाजे खोलने के बारे में अजीज़ा कहती हैं कि मोरितानिया में शादी के अखराजात बाज़ औक़ात 20 मिलियन कदीम औक़िया से भी तजावज़ कर जाते हैं। अमरीकी करेंसी में ये रकम $50,000 तक पहुंच जाती है। ये न सिर्फ दो ख़ानदानों और उनके कबायली माहौल के लिए ज़्यादा है, मगर इस मौके की अहमियत के पेश नज़र एक मुनासिब कीमत है। अजीज़ा इस बात की तस्दीक करती हैं कि ख़ानदानों को ये हक़ हासिल है कि वो शादी के इनाकाद की लागत को कम करने के लिए कम तादाद में हाज़रीन के साथ एक सादा शादी का एहतमाम करें। वो समझती हैं कि ये ऑप्शन कर्ज लिए बगैर खुशी की तकमील के लिए बेहतर है। अब इस अल अरेबिया उर्दू की रिपोर्ट या आर्टिकल को देखकर, जो कि एक मुस्तनद इदारा है, मुझे अंदाज़ा हुआ कि हम गरीब ममालिक किस कदर एक सतही सोच के हामिल हो गए हैं। जैसा कि अमीर लोग जो इन ममालिक में रहते हैं वो इतना पैसा इन शादियों में खर्च करते हैं कि आम आवाम सोच ही नहीं सकती।
لیکن ان کے اس قدم کی وجہ سے معاشرے کے تمام طبقات میں احساس محرومی پیدا ہوتا ہے۔ تو پھر ہر شخص اپنی اوقات سے باہر نکل کر، چاہے وہ قرض لے یا مکان یا گاڑی بیچے، وہ اپنے اسٹیٹس کو برقرار رکھنے کے چکر میں وہ سب کرتا ہے جس سے یہ معاشرہ اسے عزت اور بڑا مقام دے۔ بس یہی پاکستانی اور موریتانیہ جیسے معاشرے کی غربت کی وجہ ہے کہ ہم اپنے خاندان کی ترقی پر پیسہ خرچ نہیں کرنا چاہتے، بس لوگوں کو دکھانے کے لیے سب کچھ کرنا چاہتے۔ اور دیکھیں کتنی قدریں مشترک ہیں ہم دو ممالک میں، کیونکہ وہ بھی موریتانیہ اسلامی جمہوریہ ہے اور دوسری طرف ہم پاکستان بھی اسلامی جمہوریہ ہے، پر دونوں اسلامی روایات کے مطابق اپنی شادیاں نہیں کرنا چاہتے۔ اس وجہ سے ہمارے معاشرے میں کتنی ایسی لڑکیاں موجود ہیں، بچیاں ہیں جو گھر بیٹھے بیٹھے بوڑھی ہو جاتی ہیں۔ اس ایک ویڈیو کو صرف اپنی انفوٹینمنٹ کے طور پر نہ دیکھیے گا، اسے ایک پیغام سمجھیے گا اور اس کو پھیلائیے گا۔ اس کے لیے اقدام اٹھائیں، اسے لائک کریں، ویڈیو کو شیئر کریں۔ اگر ایسی ویڈیوز اور دیکھنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ بہت بہت شکریہ۔